Assalamu alaikum students. I am Ms. Sadia and I am going to teach you grade 4 English. Today we are going to discuss some further topics of our grammar. Over here first I am going to discuss articles with you. Articles are basically a, an and the. Over here we are going to learn how to use a, an and the with particular nouns. First we are going to discuss a and an. First of all, we use a and an with singular nouns. Just keep this thing in mind that a and an are used with singular nouns, not with plurals. आपको इन्हें सिर्फ singular nouns के साथ इस्तेमाल करना है. And other distinction, a and an are always used with common nouns. Common noun का concept आप लोग already familiar हैं इससे. Common noun हर उस नाउन को कहते हैं जो कि कॉमन है, कोई भी रैंडम पर्सन, कोई भी रैंडम जगह, कोई भी रैंडम चीज़. दैट्स नॉट वेरी पर्टिकुलर, वो किसी पर्टिकुलर प्रॉपर पर्सन का नाम ना हो. सो यहाँ पे हमें फर्दर एक और डिस्टिंक्शन को लर्न करना है कि ए का इस्तेमाल कहाँ होता है एंड वेयर वी आर सपोज टू यूज़ एन. सो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. ए इज़ ऑलवेज यूज विद कॉन्सोनेंट साउंड्स लाइक B, C, D, all the nouns that ends on these words that are consonants, हमें वहाँ उनसे पहले a article का use करना होता है. But for article an, we use this particular article only with vowel sounds like an elephant. Why I'm saying an elephant and not a elephant? Because elephant starts with E and E sound is one of the vowel sounds. So this is very simple to understand that a article follows all the consonant sounds, all the consonant singular nouns, and an follows all the vowel singular nouns. Now our definite article the. This article is used for specific persons, proper noun. Proper noun in sense of specific person, specific place, a particular thing that is special and that is considered a proper noun. And these things could be singular or plural. Just keep this thing in mind that a and an is always used with singular things, but the can be used with plurals as well, and the article can also be used with countable and uncountable nouns. Moving forward, we are going to learn how to describe a picture description. So whenever you are going to sort out any picture description, there are some key points that you can keep in your mind and that are going to help you in order to write some words about the pictures. What are those keywords? Those key points are general overview. Whenever you are going to write something about any picture, you are going to observe that picture very carefully. What that picture is all about. आपको उसका एक general overview देखना है कि ये picture है किस बारे में. क्या यहाँ पे एक क्लासरूम है या यहाँ कोई रोड है, क्या यहाँ पे कोई घर है या कोई और चीज़. आपके माइंड में एक क्लियर ओवरव्यू होना चाहिए कि ये पिक्चर एक्चुअली है किस बारे में. नेक्स्ट यू आर गोइंग टू फोकस if there are any characters given in that picture. Definitely there could be any characters and you can observe them. How many characters are there? What kind of characters are there? Are there any people or some birds? So you are going to focus on that as well. Then you are going to observe the setting, the whole setting given in that picture. That is going to help you to write some sentences or write some words about a particular picture that is given to you. So now I am moving to the worksheets. Good morning students. Today we are going to solve our worksheet for articles. Fill in the blanks putting a, an and the in the blanks. So we know students that a and an article, these are used for our common nouns and the is used for our proper nouns. Proper noun से पहले हमें article the लगाना होता है. A bird is flying in the sky. A bird हम जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे कैटेगरीज के बर्ड्स मौजूद हैं, तो bird एक कॉमन नाउन है. bird से पहले हमें आर्टिकल a लगाना होता है. A bird is flying in the sky. अब हम सब जानते हैं कि स्काई एक ही है, आसमान एक ही है इस दुनिया में मौजूद, तो स्काई से पहले हम आर्टिकल दी का यूज़ करेंगे जो कि प्रॉपर नाउन के लिए यूज़ होता है. ठीक. सो अ बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द स्काई. द अर्थ गोज़ अराउंड द सन. द अर्थ, इस दुनिया में इस सोलर सिस्टम में एक ही अर्थ मौजूद है, एक ही ज़मीन है और एक ही सूरज मौजूद है. सो द अर्थ गोज़ अराउंड द सन.
टेक एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द रेन. नाउ अम्ब्रेला, ये वर्ड यू लेटर से स्टार्ट हो रहा है विच इज़ आवर वाउल साउंड. तो जितने भी वाउल साउंड हैं उनसे पहले हमें आर्टिकल एन का यूज़ करना होता है, इसलिए हमें यहाँ पे टेक एन अम्ब्रेला करना है. व्हेन यू गो आउट इन द रेन, एन एस्ट्रोनॉट कैन गो टू द मून. चांद एक ही है हमारी दुनिया में मौजूद, उससे पहले हमें दी लगाना है. और एस्ट्रोनॉट यहाँ पे ए साउंड से यूज़ हो रहा है, इससे पहले एन आएगा. एन एस्ट्रोनॉट कैन गो to the moon. An old man cannot become a young boy again. Would you like a cup of tea? It was an honor to meet you. So over here, students, you have to look at the sound of the word. An honor. जबकि आप सोचेंगे कि ऑनर वर्ड जो है ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, एच लेटर है यहाँ पे, तो एन का यूज़ क्यों किया गया है? बेसिकली यहाँ पे एच लेटर साइलेंट है, ये हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे जब हम ऑनर वर्ड बोलते हैं. ऑनर वर्ड में हम ओ साउंड से इस लफ्ज़ को प्रोनाउंस करते हैं, इस वजह से हमें यहाँ पे इससे पहले एन का यूज़ किया गया है और एच को हमने कैंसिल आउट कर दिया है. सो इट वॉज़ एन ऑनर टू मीट यू. वी सॉ एन एक्सीडेंट ऑन द रोड. वुड यू टर्न द लाइट ऑन? आई विल हैव एन ऑरेंज, अ पियर एंड दी एप्पल्स. अब यहाँ पे एप्पल सिंगुलर नहीं था बल्कि एप्पल्स प्लूरल सेंस में यूज़ किया गया है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल दी आया है. Moving on to the next worksheet, we have the topic of picture description over here. So students, picture description में जब भी हमें ये टॉपिक दिया जाता है तो हमें एक कोई भी रैंडम पिक्चर दी जाती है जिसे हमें एक्सप्लेन करना होता है. किसी भी पिक्चर डिस्क्रिप्शन को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये पिक्चर किस सेटिंग में हमें दी गई है. सेटिंग से मुराद ये है कि हम उस पूरी पिक्चर का ओवरव्यू देखते हैं कि उस पिक्चर में हमारे कौन से करैक्टर्स हमें शो किए गए हैं. जैसे कि यहाँ पे देखें एक बर्ड और एक सन है जो हमें ये शो कर रहा है कि इस वक्त ये एक प्लेजेंट वेदर शो किया जा रहा है. ये सारे करैक्टर्स एक पार्क में मौजूद हैं. हमें कुछ बच्चे दिख रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं. यहाँ एक डॉग भी है जो कि अपने, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एल्डरली करेक्टर भी है बच्चों के साथ. एक ग्रैनी है या वो एक मदर है, इट डिपेंड्स. अब आपने इस पिक्चर को या कोई भी पिक्चर जो आपको दी गई है उसको गौर से देखें, उसको समझें, उसमें मौजूद करेक्टर्स पे गौर करें. उसके अंदर आप देखें कि आपको क्या क्या बताया गया है. जैसे कि यहाँ पे देखें कि दो बच्चे हैं जो कि आपको ट्री क्लाइंबिंग करते हुए दिखाई दिए गए हैं. एक ग्रैनी है जो कि एक बच्ची के साथ बुक रीडिंग कर रही हैं. अब वो उसको बुक सुना रही हैं या उसको जो भी एक्सप्लेन कर रही हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पे. सो बेसिकली हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस होल पिक्चर? चिल्ड्रन आर हैविंग फन इन द पार्क, they are enjoying themselves, they are enjoying with each other. Some children are climbing a tree. There is a boy that is running with his dog. Another girl is enjoying on her scooty, and they are all playing and enjoying the sweet weather. So this is how you can write about any picture. आपको कोई भी different picture, कोई भी different scenario दिया जा सकता है. Assalamu alaikum students. My name is Miss Sadia and I am taking your grade 4 English. Today we are going to learn about present indefinite tense and present continuous tense. Over here, I want to mention something. Whenever you are going to learn any kind of sentence, you have to take care of some particular key points. And what are those key points? First of all, you have to identify. By reading the sentence, you have to identify what kind of tense it is. किस टेंस के बारे में बात हो रही है? क्या इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात हो रही है या परफेक्ट टेंस के बारे में? क्योंकि अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सके तो आप ना ही करेक्ट हेल्पिंग वर्ब चूज़ कर सकेंगे और ना ही आप मेन वर्ब की कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकेंगे. सो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ टेंस इज़ बीइंग यूज्ड, आपको उसकी रिकग्निशन के लिए उर्दू में अगर जुमला मौजूद है तो उस जुमले के आखिर में मौजूद अल्फाज को गौर से देखना होगा, समझना होगा. जैसे कुछ अल्फाज ख़त्म होते हैं रहा है, रही है पे या रहा था, रही थी पे. इन तमाम जुमलों से आपको किसी भी टेंस की रिकग्निशन करने में बेहद आसानी हो जाती है. एंड दिस इज़ द मेन पॉइंट. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ टेंस इज़ अंडर डिस्कशन. नेक्स्ट, यू हैव टू keenly look for the helping verb. After identifying the tense, you are going to recall and you are going to use the helping verb that is particularly used for that particular tense. अगर आप present indefinite tense की बात करें तो इस tense में do और does का इस्तेमाल होता है. यहाँ पे आप did का इस्तेमाल नहीं कर सकते. Why? Because did helping verb is used for past tense. So after the identification, it is very important to keep in mind that what kind of helping verb is going to be used in this particular tense. Then you are going to be focused about the condition of main verb.
जब आपको ये बात पता लग जाए कि आप कौन से टेंस को डील कर रहे हैं और इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, उसके बाद आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इस पर्टिकुलर टेंस में जो हमारा मेन वर्ब है वो किस फॉर्म में यूज़ होगा। क्या उसकी फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी या वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करनी है, क्या हमें इसके साथ एस और ई एस ऐड करना है या हमें ing का इजाफा करना है। सो इन तमाम चीज़ों का आपको ख्याल रखना है इन ऑर्डर टू करेक्ट योर टेंसेस। Then you have to make sure about the subject, that whether the subject is singular or plural, because singular subjects follow some different rules in order to select the helping verb for them, and if we are considering the plural subjects as if students, as if people, so then the rules would be different. So you have to make sure that these 4 key points are clear to you so that you cannot make any mistake in your tenses. Now moving forward to our first tense, which is present indefinite tense. Present indefinite tense को simple present tense या present simple tense भी कहते हैं। So ये दोनों एक ही tense के नाम हैं। So basically indefinite tense होता क्या है? Present indefinite tense is basically used to express universal truth, ऐसी चीज़ें जो हमेशा से वैसी की वैसी ही रहेंगी। एज़ वी नो द सन राइजेज इन ईस्ट, सूरज मशरिक़ से निकलता है, सूरज हमेशा मशरिक़ से ही निकलता रहा है और हमेशा मशरिक़ में से ही निकलेगा, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ऐसी तमाम बातें जो यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म में यूज़ की जाती हैं। देन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज़ ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब सम एक्शन दैट इज़ बीइंग डन इन प्रेजेंट टाइम. It also describes some true events, some habits. So all these kind of situations can be happen in present indefinite tense. How can you identify that any word, any sentence belongs to present indefinite tense category? As I told you that you must identify it in order to solve that. So you have to found these words, these particular endings at the end of the sentence. जैसे अगर मैं ये बात कहूँ कि मिस सादिया पढ़ाती हैं, ये सेंटेंस इस जुमले में ये जुमला एंड हो रहा है ती है पे, ये पर्टिकुलर वर्ड आपका क्यों है, इससे आपको ये मालूम हो रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैटेगरी में फॉल करता है. सो व्हाट इज़ द रिकग्निशन दैट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? दैट्स द उर्दू सेंटेंसेस, द उर्दू के जुमले जो हैं वो एंड होंगे ता है, ती है या ते हैं पे, इन जुमलों में ही इनकी एंडिंग होगी. देन हेल्पिंग वर्ब. सो व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब दैट आर यूज्ड फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? सो हर टेंस में आगे फर्दर 3 कैटेगरीज के सेंटेंसेस होते हैं. पहले को कहते हैं सिंपल टेंस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस. देन वी हैव नेगेटिव सेंटेंसेस जो कि नेगेटिव सेंस में यूज़ होते हैं. एंड एट लास्ट वी हैव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें हम सवाल करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. सो एज़ फार एज द अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सिंपल सेंटेंसेस की बात करें तो उन जुमलों में हम एस या ई एस ऐड करते हैं हमारे मेन वर्ब के साथ. एस और ई एस जब हम मेन वर्ब के साथ ऐड करते हैं तो उसमें हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ यूज़ करने हैं. प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर दैट आर ही, शी एंड इट. सिर्फ ही, शी और इट प्रोनाउन से रिलेटेड सेंटेंसेस ही एस और ई एस की एडिशन लेंगे जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात कर रहे हों. फर्दर जब हम इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं तो ये पॉइंट आपको क्लैरिफाई हो जाएगा. While making the negative sentences, we use helping verb do not and does not. So this is very simple to understand कि जब हमें सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो अगर प्रोनाउन ही, शी या इट यूज़ हो रहा हो तो हमें मेन वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड करना है, नथिंग एल्स. बाकी किसी भी प्रोनाउन के साथ कुछ भी ऐड नहीं करना, वो एज इट इज़ रहेंगे. वाइल मेकिंग द नेगेटिव हमें या तो डू नॉट यूज़ करना है या डज़ नॉट यूज़ करना है. अब इन दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि डू नॉट कहाँ यूज़ करें और डज़ नॉट कहाँ यूज़ करें? अगेन वेरी सिंपल, द सेम रूल गोज़ विद डज़ एज वेल. ही, शी, इट follows एस एंड ई एस and he, she, it also follows this does. So थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस ही, शी, इट के साथ डज़ नॉट आएगा और बाकी तमाम प्रोनाउंस डू नॉट को फॉलो करेंगे.
एंड जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करते हैं. सो इस चीज़ को हमें ख्याल रखना है कि हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करते हैं इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. और उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ अगर हमारा प्रोनाउन ही, शी या इट का यूज़ हो रहा हो तो सिंपल सेंटेंसेस में एस या ई एस ऐड कर देंगे और नेगेटिव सेंटेंसेस में डज नॉट ऐड कर देंगे. लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स. यहाँ मैंने उर्दू में एक एग्जांपल लिखी है, सारा खाना खाती है. देखिए ये जुमला ती है पे एंड हो रहा है. देखिए यहाँ पे मैंने रिकग्निशन में आपको ये चीज़ मेंशन की कि आपने जुमले से आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि क्या ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है भी या नहीं. इस जुमले में हमें पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है बिकॉज इट्स एंडिंग ऑन ती है. सारा खाना खाती है. नाउ ओवर हेयर हमारा सब्जेक्ट क्या है. इस जुमले में एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, सारा. सारा हमारा सब्जेक्ट है और सारा के लिए अगर हमें प्रोनाउन यूज़ करना पड़े दैट वुड बी शी. सारा फॉलोज द प्रोनाउन शी. सो ही, शी, इट के साथ अगर हमें यूज़ करना है, एक सादा जुमला बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हमें एस या ई एस का इजाफा करना होता है. सारा खाना खाने को कहते हैं ईट, तो हमने लिखा ईट और उसके साथ एस ऐड कर दिया, सारा ईट्स फूड. अगर सारा की जगह यहाँ पे मैं कर देती हूँ बच्चे, चिल्ड्रन, तो बच्चों के लिए तो जो प्रोनाउन यूज़ होता है वो है दे. दे प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन नहीं है. सो इसलिए अगर सारा की जगह पे चिल्ड्रन आ जाएगा तो चिल्ड्रन ईट फूड. यहाँ पे फिर हमें एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं. बच्चे काम ख़त्म करते हैं, यहाँ पे मैंने बच्चे यानी प्लूरल यूज़ किया है. चिल्ड्रन प्लूरल वर्ड, फिनिश द वर्क. यहाँ मैंने एस या ई एस नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा सब्जेक्ट था प्लूरल था. अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हमें यहाँ पे एस या ई एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं. लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें एस या ई एस लगाना होगा मेन वर्ब के साथ. इन ऑर्डर टू मेक द नेगेटिव वी यूज़ डू नॉट और डज नॉट. सारा खाना नहीं खाती है, सारा डज नॉट ईट फूड. और अगर मैं कहूँ बच्चे काम ख़त्म नहीं करते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट फिनिश देयर वर्क. सो सारा जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट आएगा. और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें उसके साथ डू नॉट को ऐड करना पड़ेगा. सेम रूल हमारा चलता है डू और डज का जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे होते हैं. सो इन ऑर्डर टू फॉर्म अ क्वेश्चन हम डू या डज जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं इन्हें सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं. वाइल कंप्लीटिंग इट्स वर्कशीट आई एम गोइंग टू फर्दर एक्सप्लेन इट टू यू. नाउ मूविंग टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जितने भी एक्शन होते हैं ये ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है जो कि प्रेजेंट टाइम में अभी हो रहे हों. ऑल दोज एक्शंस दैट आर हैपनिंग राइट नाउ इन प्रेजेंट टाइम. सो उस रिकग्निशन में, इनकी रिकग्निशन के लिए हम यूज़ करते हैं उर्दू में रहा है, रही है, रहे हैं. जैसे टीचर पढ़ा रही हैं, हम गाना गा रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं. इस तरह की एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल होता है. हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं इज़, आर और एम. इज़ यूज़ होता है ही, शी, इट के साथ. आई, वी, दे के साथ, वी, दे एंड यू के साथ यूज़ होता है आर. और आई प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है एम. जैसे आई एम सादिया, आई एम टीचिंग यू. सो इस सेंटेंस में भी हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करनी होती है. लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ का हमें ख्याल रखना है. वेन एवर वी आर डिस्कसिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड देयर आर हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम, वी आर गोइंग टू ऐड ing विद आवर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. मतलब वर्क, काम एक वर्ब है तो मैं इसके साथ ing लगा दूंगी एंड इट वुड बिकम वर्किंग. So this is the rule you are going to follow when you are going to make any sentence in present continuous tense. यहाँ पे कुछ examples को discuss करते हैं. सारा खाना खा रही है, सारा is eating food. सारा खाना नहीं खा रही है, सारा is not eating food. यहाँ पे हम एक plural subject की example लेते हैं. बच्चे काम ख़त्म कर रहे हैं, children are finishing work. So over here if our subject was singular
we use is as a helping verb. If our subject was plural, children, we use are for our plural subject, and am goes with pronoun I. Now I am going to solve our worksheet for you. So students, now we are going to discuss our present indefinite tense in this worksheet over here. First of all, there is definition. Simple present tense is used to talk about general truths. As I told you, it discusses universal truth as well. It is an action that is currently going on or habitually performed. So present indefinite tense में हम एक ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो प्रेजेंट टाइम में मुसलसल किया जाता हो, एक हैबिट हो. फॉर्मेशन यानी इसका फॉर्मूला. सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, किसके बारे में बात की जा रही है इस जुमले में. फिर वर्ब, एक्शन क्या है, हमारा वर्ब क्या है, ये मेन वर्ब की बात हो रही है और उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है. और लास्ट में हम हमारे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यानी वो चीज़ जिसके ऊपर सब्जेक्ट की वर्किंग का इम्पैक्ट आ रहा है. ये सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन है. सिंपल सेंटेंस जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. इन ऑर्डर टू मेक द नेगेटिव सेंटेंस हमें हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करना होता है. सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करते हैं डू नॉट या डज नॉट, और फिर सेम फार्मूला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम यूज़ करते हैं और बाद में आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट. In order to make our interrogative sentence means in order to make a question, we move this do not or does not in front of the subject. So do not और does not पहले आ जाते हैं and subject comes later. उसके बाद हम अपना verb ढूंढते हैं, हमारा मेन verb क्या है, मेन एक्शन क्या परफॉर्म किया जा रहा है, और in the last we put our object with a question mark. Over here we have a note. We will add s or es with verb when there is he, she or it or any singular noun is present in the sentence. यानी अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कोई भी सिंगुलर नाउन इन डिस्कशन हो इस किसी भी जुमले में और प्रोनाउन ही, शी और इट का इस्तेमाल हो, तो हमें जो हमारा मेन वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस या ई एस लगाना होता है. एग्जाम्पल, हैरी प्लेज फुटबॉल डेली. ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें हैरी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैरी सिंगुलर है. सो दैट्स वाई हमें इस वर्ब के साथ एस को ऐड करना है. इस वर्ब के साथ हमें यहाँ पे एस ऐड करना पड़ा. अगर हैरी की जगह स्टूडेंट्स होते तो हम यहाँ पे ऐड नहीं करते, बिकॉज स्टूडेंट्स स्टूडेंट का प्लूरल है, राइट. तो स्टूडेंट्स के साथ हमें एस या ई एस ऐड करने की ज़रूरत नहीं. सिंगुलर हमारे जो सब्जेक्ट है उसके साथ ही हमें एस या ई एस को ऐड करना होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंसेज में. नेगेटिव की एग्जाम्पल है, हैरी डज नॉट प्ले फुटबॉल डेली, राइट. हैरी एक सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए डज नॉट लग गया. अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता तो डू नॉट लगता. और इंटेरोगेटिव बनाते हुए डज को हम सेंटेंस सब्जेक्ट से पहले ले आए. डज हैरी प्ले फुटबॉल डेली एंड क्वेश्चन मार्क. यहाँ एक क्वेश्चन हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है. नाउ लेट्स फिल दिस एक्टिविटी. Fill the column with accurate sentence according to the rules of present indefinite tense. Saim, एक singular subject, Saim gets up early in the morning. Gets up, singular subject के साथ हमें verb में s या es को add करना होता है. Negative बनाने के लिए, क्योंकि हमारा subject singular है, जैसे यहाँ पे हमारा subject singular था, तो singular subject के साथ negative में does not use होता है. तो Saim के साथ भी does not ही use होगा. Saim does not get up early in the morning. और जैसे यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए हम डज को अपने सब्जेक्ट से पहले ले आए, यहाँ पे भी हम यही करेंगे. डज साइम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क. शी वेयर्स न्यू क्लोथ्स. शी वेयर्स न्यू क्लोथ्स. यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ हमें एस या ई एस को ऐड किया गया है. अब यहाँ पे उसका नेगेटिव हम डिस्कस करते हैं और फिर उसका इंटेरोगेटिव. इन ऑर्डर टू मेक द नेगेटिव, शी डज नॉट वेयर न्यू क्लॉथ्स. शी डज नॉट वेयर न्यू क्लॉथ्स, क्योंकि शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए डज आया उसके साथ. और इंटेरोगेटिव में डज शी वेयर न्यू क्लॉथ्स, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ले आए, डज शी वेयर न्यू क्लॉथ्स. आई लाइक टू ईट एप्पल. आई लाइक टू ईट एप्पल. सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हमें एस या ई एस लगाना होता है, तो यहाँ पे आई लाइक्स करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं. आई लाइक टू ईट एप्पल. और जितने भी हमारे ही, शी, इट के अलावा
प्रोनाउन है उनके साथ हम डू नॉट ही फॉलो करेंगे. सो आई डू नॉट लाइक टू ईट एप्पल, डू आई लाइक टू ईट एप्पल. स्टूडेंट्स प्लूरल, अगेन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 वर्क हार्ड. यहाँ पे वर्क्स करने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स की बात हो रही है. स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 डू नॉट वर्क हार्ड, यहाँ डज लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है. डू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 वर्क हार्ड, क्वेश्चन मार्क. द डॉग, एक डॉग की बात हो रही है, सिंगुलर. द डॉग बार्क्स एट हिम, द डॉग डज नॉट बार्क एट हिम. डज द डॉग बार्क एट हिम? सो नाउ this exercise is clear to you. We are moving to our other activity. Complete each sentence by changing the verb into present tense. यहाँ पे आपको ब्रैकेट में जो वर्ब दिए गए हैं उन्हें हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हुए कि वो सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग हमें एस या ई एस ऐड करना है और वर्ब को चेंज करना है. लेकिन क्योंकि सिर्फ प्रेजेंट टेंस इन कंसिडरेशन है तो हमें सिर्फ एस या ई एस ही ऐड करना है वर्ब के साथ, नथिंग एल्स. सारा सिंगुलर. सारा कुक्स ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग. साइम लिव्स इन कराची. अहमद प्लेज द पियानो एट द कॉन्सर्ट. क्योंकि सारा के लिए प्रोनाउन शी यूज़ होता है, साइम के लिए प्रोनाउन ही यूज़ होगा, अहमद के लिए प्रोनाउन ही यूज़ होगा. एवरी नाइट आई रीड माई बुक. एवरी नाइट आई रीड माई बुक. आई ऑलवेज आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन. यहाँ आई प्रोनाउन के साथ हमें मेन, ये जो हमारा मेन वर्ब है, हम एस या एस ऐड नहीं कर रहे, ज़रूरत नहीं. शी ड्राइव्स टू फास्ट. शी प्रोनाउन, इसके लिए ही शी इट के साथ हमें एस या ई एस ऐड करना है. सो शी ड्राइव्स टू फास्ट. द बॉय, एक बॉय प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो द बॉय टर्न्स ऑन द लाइट. वी, हम प्लूरल हैं तो वी वेव टू आवर सिस्टर. माई मदर बेक्स द बेस्ट ब्राउनी. माई मदर सिंगुलर पर्सन. द डॉग सिंगुलर, द डॉग बार्क्स एट द मेलमैन. फिल इन द ब्लैंक्स विद डू नॉट और डज नॉट और डू और डज. यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे. बिल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बिल डज नॉट प्ले टेनिस एवरी संडे. बिल डज नॉट प्ले टेनिस एवरी संडे. वी प्लूरल, वी डू नॉट गो टू पार्क. टॉम से पहले डज लगेगा क्योंकि टॉम एक सिंगुलर है इसलिए डज हेल्पिंग वर्ब लगेगा. डज टॉम नो ऑल द कंप्यूटर गेम्स. डू दे गो टू द जू ऑन संडे. आई डू लाइक टू गेट अप अर्ली. So these are the answers and you can solve this. Now over here in this activity, change the given sentence into simple, negative और interrogative. यहाँ पे हम sentence में change करेंगे, हमें जो given sentence है उसको negative या interrogative में change करेंगे. My mother usually gets up at 6 o'clock. यहाँ देखिए mother एक singular subject है इसलिए s यूज़ किया गया है. So singular subject जब होगा और negative बनाना होगा तो हमें does not यूज़ करना होगा. My mother usually does not get up at 6 o'clock. Does my mother get up at 6 o'clock? यहाँ पे लिखा है does my sister sing really well. Sister singular और does का यूज़ किया गया है. Negative sentence कैसे बनेगा? My sister does not sing really well. और इसका सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? माई सिस्टर सिंग्स रियली वेल. माई सिस्टर सिंग्स रियली वेल. वी डू नॉट स्टार्ट क्लास एट 10 AM शार्प. वी प्लूरल है तो हमें डू नॉट यहाँ पे यूज़ किया गया है. इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? डू पहले आ गया. डू वी स्टार्ट क्लास एट 10 AM शार्प. और इसका सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा? वी स्टार्ट क्लास एट 10 AM शार्प. द डॉग समटाइम्स बाइट्स द स्ट्रेंजर्स. डॉग एक सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए यहाँ पे एस लगा है. द डॉग समटाइम्स बाइट्स द स्ट्रेंजर. द डॉग समटाइम्स डज नॉट बाइट द स्ट्रेंजर. और डज को पहले ले आएंगे तो डज द डॉग समटाइम्स बाइट द स्ट्रेंजर, फुल स्टॉप. आई गो टू स्कूल ऑन बस डेली. मैं रोज़ बस पे स्कूल जाती हूँ. यहाँ पे आई प्रोनाउन यूज़ किया गया था इसलिए गो के साथ एस या एस नहीं लगा, गोज़ नहीं हुआ. आई डू नॉट क्योंकि सिंगुलर के साथ डू जाएगा. ही शी इट सिंगुलर के साथ हमारा डज जाता है. आई वी दे यू के साथ हमारा डू जाएगा क्योंकि आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है इसलिए. आई डू नॉट गो टू स्कूल ऑन द बस. डू आई गो टू स्कूल ऑन द बस? सो दीज आर द आंसर्स फॉर आवर दिस वर्कशीट. मूविंग ऑन टू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. Over here we have this question, complete the following sentence using present continuous tense.
सो दिस इज़ द फार्मूला दे हैव मेंशन्ड ओवर हेयर. सब्जेक्ट के बाद इज़ आर एम लगाना होता है और हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है, लेकिन उसके साथ आई ऐड करना है. माई सन इज़ टॉकिंग, ये टॉक्स की जगह माई सन इज़ टॉकिंग ऑन द फोन राइट नाउ. स्लीप की जगह स्लीपिंग हो जाएगा. आर यू स्लीपिंग? जेसन इज़ डूइंग, जेसन इज़ डूइंग हिज होमवर्क एट द मोमेंट. डू के साथ डूइंग, वर्क के साथ वर्किंग. टॉम सिंगुलर है तो टॉम इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट नाउ अ डेज. प्ले के साथ प्लेइंग बन जाएगा. माई किड्स प्लूरल तो आर, माई किड्स आर प्लेइंग इन द गार्डन राइट नाउ. सम पीपल, कुछ लोग, प्लूरल है तो आर आएगा. वेट से आई लगाएंगे तो वेटिंग. सम पीपल आर वेटिंग टू टॉक टू यू. माई वाइफ सिंगुलर इज, माई वाइफ इज़ not cook, not cooking. My wife is not cooking today. Is Lucas studying for his exam right now? Is Ryan playing the piano now? Leah and I, two person तो plural हो गए. Leah and I are painting the fences today. Andrea is helping me at present. My children are not listening to the radio now. Selena is not drinking tea now. I am vacuuming the carpet right now. My father is watching TV now. My father, because it's singular, that's why is. What is she eating right now? She and eat. So she के साथ is आएगा. What is she eating right now? Your dog is hiding from me. What book are you reading nowadays? Thomas is driving me home now. I am washing my face at the moment. Over here with pronoun I, am is used. So I के साथ हमेशा am आएगा. he, she, it के साथ is आएगा और you, we और they के साथ are आएगा. That's all for today students. I hope you have a complete understanding for present indefinite tense and present continuous tense.